Okay, so very good afternoon, everyone. Good morning, sorry. Exercise number 6. These are the miscellaneous exercise question, which is in page number 182. So page number 182, everyone take out. सब कोई पेज नंबर 182 निकाल लें. Exercise number 6 is based on multiples and factors, including HCF and LCM. Okay, so here basically we will start with the multiples and factors. So with the help of this only we will include, HCF and LCM are also included here. So first start with the divisible. Okay, select the number divisible by 3. यहाँ पे हमने 3 का divisibility rules सीखा है. तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि which among the following number are divisible by 3. So quickly tell me everyone, select the numbers divisible by 3. Select the numbers divisible by 3. So यहां पे जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उसमें से आपको बताना है जो 3 से डिवाइड चल जाता है. 369 1361 क्या हम लोग ने पढ़ा था एवरीवन? इफ रिमेंबर, व्हाट वाज द डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ 3? क्विकली कैन एनीवन टेल मी? 2 4 3 6 then 3 0 1 2 and 7 0 1 5. So quickly can anyone tell me what was the rules to test the divisibility criteria for 3? 3 का divisibility criteria हम लोग ने क्या पढ़ा था? जल्दी से बताएं कोई. Quickly, what is the criteria, divisibility criteria of 3? कोई नंबर को हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो पर्टिकुलर नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है? हमने डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो सारा पढ़ा था. उसमें 3 का डिविजिबिलिटी पढ़ा था कि एक नंबर तभी 3 से डिविजिबल जाता है अगर उसका जो भी डिजिट्स है उसका सम अगर 3 से डिविजिबल चल जाए. फॉर एग्जांपल, अगर इसका हम लोग देखें, 6 + 3 is 9, 9 + 9 is 18. So 18 जो है this is divisible by 3. Okay, 3 6 are 18. So this is how this 369 will also be divisible by 3. तो अभी हम लोग इसका चेक करते हैं. 3 + 1 is 4, 4 + 6 is 10, 10 + 1 is 11, 11 is not divisible by 3. So this number will not be divisible by 3. ये नंबर 3 से divisible नहीं होगा. ठीक है, आगे हम लोग अगर बढ़े और इसको करें तो 2 + 1 is 3, 3 + 1 is 4, 4 + 6 is 10, 10 is also not divisible by 3. So ये भी नंबर जो है ये भी 3 से divisible नहीं होगा. ठीक है, आफ्टर देन अगर इसका बात करें, 2 + 4 is 6, 6 + 3 is 9, 9 + 6 is 15. So 15 is divisible by 3. Okay, 3 5 are 15. So this number will be divisible by 3. तो ये नंबर 3 से divisible चल जाएगा. उसी तरह से अगर हम लोग इसका बात करें, 3 + 1 is 4, 4 + 2 is 6. Okay, so 3 + 1 is 4, 4 + 2 is 6. तो 6 जो है वो 3 से divisible है. 3 2 are 6. तो this number will also be divisible by 3. तो ये भी नंबर 3 से divisible हो जाएगा. अभी 7 + 1 is 8, 8 + 5 is 13. Okay, 8 + 5 is 13, which is not divisible by 3. So this number will also be not divisible by 3. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 3 नंबर हमारा निकल के आया जो 3 से divisible है. One is 369, another is 2436, another is 3012. So this is the simple criteria to check the divisibility by 3. So just you need to add all the number and whatever the sum you are getting, that number you have to divide by 3.
सो 3 से डिवाइड करके वो चेक करना है, जो भी नंबर्स 3 से डिविजिबल चल जाएगा, जिसका भी सम, दोज ऑल नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 3. ओके, सो वेरी इजीली दिस इज हाउ यू कैन डू दिस. मूविंग टू द डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ 4. सिलेक्ट द नंबर डिविजिबल बाय 4. नाउ द क्वेश्चन इज सिलेक्ट द नंबर डिविजिबल बाय 4. जो 4 से डिविजिबल है उसको सिलेक्ट करना है. तो जल्दी से बताएं व्हाट वाज द डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ 4. 4 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने क्या पढ़ा था, जल्दी बताएं. इफ एनीवन रिमेंबर, क्विकली टेल मी व्हाट आर द डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया टू चेक divisible is the number is divisible by 4 or not. The numbers which are given is 3, 2, 1, 6, 1, 2, 1, 5, 3, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 2, sorry, 2, 1, 3, 2, and 4, 5, 2, 4, 4, 5, 2, 4, and 2, 1, 3, 1. So these are the numbers which it is given. It is asking to check the divisibility criteria of 4. ठीक है. So यहाँ पे 4 का सिंपली है कि राइट मोस्ट 2 डिजिट हमें देखना है. राइट मोस्ट 2 डिजिट का मतलब ये होता है कि राइट साइड से वंस और टेंस प्लेस को लेकर के 2 डिजिट चेक करना है. अगर वो 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाता है, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4. तो यहाँ पे 16 है. 16 4 से डिविजिबल है कि नहीं? 4 4 आर 16, राइट? सो 16 4 4 आर 16 होता है. तो ये लास्ट जो राइट मोस्ट 2 डिजिट है, these 2 digits are divisible by 4, so this whole digit will also be divisible by 4, very simply. So this is how you need to check this first 2 digit. So 15 is here, 15 is not divisible by 4, right? So this whole number will not divisible by 4. So now next we are checking 14. 14 is 14 divisible by 4? No. Okay, 4 3 are 12, 4 4 are 16. So 14 is not divisible by 4, so this whole number will not divisible by 4. 32 is 32 divisible by 4? 4 8 are 32. Yes, 4 8 are 32, so this number will be divisible by 4. So यहाँ पे 2 1 3 2 जो है, this will be divisible by 4. यहाँ पे 24 4 6 are 24, so here also these 2 digits are divisible by 4, so this whole number will be also divisible by 4. Here 31 is not divisible by 4. Okay, so if 31 is not divisible by 4, then whole number, this 2131 will also be not divisible by 4. So simply here also the 3 numbers come out. One is 3216, another is 2132, and this one is 4524. So these are the 3 numbers which are divisible by 4. So this is these are the some divisibility criteria of 3 and 4. Okay, so very simply by checking the rightmost 2 digit, we can directly tell which number are divisible by 4 and which number are not divisible by 4. Okay, moving to the next question. This was the second question. Now let us discuss the further what it is asking. So now the third question is select the numbers which are divisible by 7. So quickly tell me, who can tell me what are the divisibility criteria, what is the divisibility criteria to check the divisibility of 7 or not. So 7 का divisibility check करने के लिए क्या criteria बताएं. The number are given 1 4 2 1, then 2 7 1 4, then 1 6 1 0, then 3 5 1 0, and 7 8 3 3. So 7 8 3 3. So these are the numbers which we have. Now you have to check the divisibility criteria of 7. Do anyone remember what are the divisibility criteria of 7? What is the divisibility criteria? How can we check the number is divisible by 7 or not? हाँ, तो हमने पढ़ा था कि जो भी राइट मोस्ट नंबर है, राइट मोस्ट नंबर जो नंबर है मींस वंस प्लेस में जो नंबर है,
twice of that you have to subtract with the remaining numbers. Okay, and if you got the difference of those two as like 0 or the multiple of 7, then it will be divisible by 7. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के साथ अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं. जैसे मान लीजिए ये जो नंबर है, इसका जो फर्स्ट डिजिट नंबर है ये 1 है, ठीक है. तो ट्वाइस ऑफ 1 मींस 2 टाइम्स ऑफ 1 मींस 2, एंड रिमेनिंग डिजिट जो है ये हमारा 142 है. तो 142 minus 2 times of the ones digit. So 2 times of the ones digit means 2 times of 1 is 2. So if you subtract this, 142 minus 2 is equal to 140. So 140, is this the divisible by 7 or not? 7 2 or 40. तो ये 720 टाइम्स, अगर इसको आप 7 से डिवाइड करोगे ये डिवाइड हो जाएगा, सो 20 टाइम्स में चल जाएगा. सो दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7. तो यहां पे सिंपल लॉजिक आपको याद रखना है कि जो 1 डिजिट को छोड़ के जो रिमेनिंग नंबर है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 टाइम्स ऑफ द वंस डिजिट. तो 2 टाइम्स ऑफ द वंस प्लेस का नंबर जो है उतना सब्ट्रैक्ट करना है. तो यहाँ पे 142, दिस वंस प्लेस छोड़ के 142, तो हमने लिखा है 142 and subtracted 2 times of 1, so 2 into 1 is 2. So that it is coming 140. 140 is the multiple of 7. 720 times 140. So this number will be divisible by 7. तो ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे और भी एग्जांपल्स के साथ अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं हम लोग. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबसे मोस्ट डिफिकल्ट अगर देखा जाए 7 से डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया को माना जाता है. तो यहाँ पे सिंपल ये है कि हमें सबसे पहले वंस प्लेस को छोड़ के रिमेनिंग डिजिट को लिख लेना है. तो रिमेनिंग डिजिट हमारे पास यहाँ पे 271 है. उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है 2 टाइम्स ऑफ द वंस डिजिट नंबर. 2 times of the ones digit number means here we have ones in ones place 4, so 2 times of 4. So 2 times of 4 means 4 2 are 8. So you have to subtract 8. So if you subtract 8 from this, how much is the answer coming? Let us see. 8 9 10 11 3, this will be 6, 263. Now you have to check this 263 is the multiple of 7 or not by dividing with 7. 7 से अगर पूरा तरह से डिवाइड हो जाता है तो इसका होगा, अदरवाइज नहीं. तो चेक कर लीजिए एक बार इसको फिर से 7 से डिवाइड करके. शो 267 डिवाइडेड बाय 263 डिवाइडेड बाय 7. सो इसको 7 से डिवाइड करने से 7 263 चेक करिए. 4 7 are 28, 3 7 are 21, तो 5 and 3, okay, 53. 7 8 are 56, 7 7 are 49. So this is not completely divisible, so this number will not be divisible by 7. तो ये 7 से नहीं डिविजिबल होगा. हमने क्या किया, सिंपली वंस प्लेस को छोड़ के जो रिमेनिंग डिजिट है उसको लिखा and 2 times of the ones place लिखा. तो 2 times means 8, 4 multiply 2 is 8. So 271 minus 8 is 263. Okay, so 263 if you divide by 7 it is not dividing completely, so that means this is not divisible by 7. Okay, let us see the further. Okay, so further we have 0 in ones place. So 0 है तो remaining digit 161 है. 161 minus 0 into 2 is 0 only. So it will become as like 161 only. So this now you have to divide by 7 to check it out. Is the multiple multiple or not? So if you divide by 7, 7 2 are 14. 161 divided by 7. 7 2 are 14. 21. 3 7 are 21. So it is going. It is dividing by 23 times. So 23 times में ये जा रहा है. So that means this number will also be divisible by 7. ये भी 7 का divisible हो जाएगा. फिर से समझने का कोशिश कीजिए. वंस प्लेस को छोड़ के जो रिमेनिंग डिजिट है उसको मैंने लिखा 2 times of the ones place, 2 times of 0 is 0. After then 161 को हम लोग चेक करके देखेंगे if this number is divisible by 7 और if this is 0. अगर 0 डिफरेंस आते हैं तो भी, या अगर 7 का मल्टीपल आता है या 7 से कंप्लीटली डिविजिबल जाता है तो दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7. ओके, सो ये हो गया. हम लोग और 2 नंबर से उसको भी देखते हैं और अच्छे से समझने के लिए.
ठीक है, सिंपल है, नथिंग, जस्ट वंस प्लेस को छोड़ के रिमेनिंग डिजिट लिखना है, सब्ट्रैक्ट करना है 2 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट प्लेस, 2 टाइम्स ऑफ द वंस प्लेस. सो here also 351, so 351 minus remaining 2 times of the first digit, so 0. ओके, so 351 को इसका मतलब हमें चेक करना है 7 से डिविजिबल जा रहा है कि नहीं. ठीक है, तो सिंपली 7 से डिविजिबल जा रहा है कि नहीं देख लीजिए. 351, so 7 5 7 are 35, so 1 is remaining, so it will not go. So this number will also not be divisible by 7. ये भी नंबर 7 से डिविजिबल नहीं जाएगा क्योंकि 351 7 से डिविजिबल नहीं जा रहा है. ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें. तो इसका जो है वंस प्लेस को छोड़ के 783 है, so 783 minus 2 times of the ones place, so 2 times of 3 means 3 2 are 6, 3 2 are 6. So here the numbers will be how much? So subtract this, it will come 6 plus 7 is 13, so it will be 7 7. Okay, so 777 is divisible by 7 or multiple of 7, so this number will also be divisible by 7. तो सिंपल तरीका ये है कि leaving the first ones place, remaining place number first we will write, and the 2 times of the ones place number we have to subtract. Subtract करने के बाद अगर ये नंबर जो आ रहा है, this number if it is divisible by 7 or if it is 0, then we will say the required number is divisible by 7. So quickly tell me everyone if anyone having any doubts in the divisibility criteria of 7. divisibility criteria of 7 में अगर किसी को कुछ डाउट है तो जल्दी पूछें, अगर समझ गए हो तो बताइए. दिव्यांशी, अनुराज, दिव्यांशी वर्मा, हर्षराज, दीपिका, अभिषेक, पीहू, प्रियांशु, पुनीत एंड तृप्ति, सभी को समझ में आ गया है? चलिए बहुत बढ़िया. हाँ, कभी भी इस तरह से आप लोग बनाते हो, so just try to do these all steps in a copy, homework class work copy, then it will be effective कि आपने you have just tried, you have checked, you have verified with the process, with the steps, whatever the rules, divisibility criteria rules. Okay, so according to that you have done. So ये पता होना चाहिए. 11 के बाद अब हम लोग 7 के बाद अब हम लोग का है 8 का. तो 8 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बताएं सभी. 8 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वेश्चन नंबर 3. डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4. Now you have to select the divisibility criteria of 8. Select the numbers divisible by 8. Okay, so आपको select करना है जो numbers 8 से divisible है उसका. चलिए हम लोग select करते हैं. The number which we have is 1 4 0 0 1 2 1 1 1 6 2 4 1 2 0 0 1 3 1 1 1 7 8 4. So these are the numbers which it is given and it is asking to check the divisibility criteria of 8. So हमने divisibility criteria of 8 में पढ़ा था. If anyone remember, can anyone tell me what is the process which we have learned in divisibility criteria of 8? जल्दी से बताएं. हाँ, तो कोई भी नंबर का जो राइट मोस्ट 3 डिजिट है, जैसे हमने अभी 4 में जो चेक किया था राइट मोस्ट 2 डिजिट के लिए चेक किया था, तो वैसे 8 के लिए राइट मोस्ट 3 डिजिट को देखना है. राइट साइड से 3 डिजिट, वंस, टेंस और 100 प्लेस, अगर वो 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल है तो जो भी रिक्वायर्ड नंबर है वो भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा. तो हमें अभी जो फर्स्ट 3 डिजिट है वंस, टेंस और 100 प्लेस का जो नंबर्स है उसको 8 से डिवाइड करके चेक करना है वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं. तो 400 है, 400 तो 8 से डिविजिबल जाएगा ही. ठीक है,
सो क्योंकि वी नो 5 8 और 40, 5 8 और 40, सो 50 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 400, तो ये तो चल ही जाएगा, ठीक है। सो वेरी इजीली यहाँ पे 211 है, 211 जो है वो 8 से डिविजिबल है। चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे, चलिए 211 8 से, ठीक है। तो कितना टाइम्स में जाएगा? 8 2 आर 16, 4, ओके, सो 41, 5 8 और 40 तो नहीं जा रहा है पूरा, ठीक है, तो 1 रिमाइंडर रह जा रहा है। So this is how this number will not be divisible by 8 because these three number are not divisible by 8, ठीक है। तो यहां से राइट मोस्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल चल जाता है, then the required number will also be divisible by 8. So 624 का चेक कर लीजिए 8 से डिविजिबल जाता है कि नहीं, ठीक है। 8 8 are 64, 7 8 are 56. So चेक करिए 624 का, 624 divided by 8, 7 8 are 56, so 6 2 are 12, 6 2 are 12, so 6, and this will be 0, so 64 now, 8 8 are 64, so this is divisible by 8, 624. So this 624 will also 1624 will also be divisible by 8. तो चाहे कितना भी नंबर हो, अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल जाता है तो पूरा नंबर डिविजिबल चल जाएगा 8 से, ठीक है। 200 है, 200 जो है वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं? चलिए हम लोग देखते हैं 200 का, ओके। सो 8 से 8 2 आर 16, 16 plus 4 is 20, so 40, 5 8 are 40, okay, so 5 8 are 40, so this is 200 is also divisible by 8, so this whole number will also be divisible by 8, चाहे कोई भी नंबर हो उससे पहले, it doesn't matter। यहां पे जो नंबर है 311, so 311 को चेक किया जाए, 311 is divisible by 8 or not, ठीक है। सो 311 8, 3 8 are 24, सॉरी, हाँ, बिकॉज 4 8 are 32, so 3 8 are 24, 4 plus 7, 4 plus 7 is 11, so this 3 will become 2, so 1, 8 9 are 72, तो ये नहीं जाएगा, ठीक है, तो नहीं जाएगा। 8 8 are 64, so this is not going, that means this number will also be not divisible by 8. So now let us check 784, 784 जो है वो divisible जा रहा है कि नहीं 8 से? 784, so 784 check by dividing with 8, so 8 9 are 72, 6, okay, so 64 now, 8 8 are 64, so this is going in 98 times, so this number will also be divisible by 8. So simply आपको लास्ट 3 डिजिट चेक करना है, अगर लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल चल जाता है तो बाकी जो पूरा नंबर है वो भी 8 से डिविजिबल चल जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी है, समझ में आ गया सभी को। लास्ट एक डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ 11, ठीक है। तो आपको 11 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया बताना है कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यहाँ पे जो भी डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है स्पेशली थोड़ा सा डिफिकल्ट वगैरह दिया हुआ है, तो अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। हमने पढ़ा है वैसे 5 का है, आपको बताना है डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ 11। द नंबर्स विच आर गिवन इज 2 4 3 5 2 0 5 7 2 5 2 5 0 8 3 2 5 4
7 2 1 6 2 7 9 3. So these are the numbers given. It is asking to check the divisibility criteria of 11. So 11 से ये नंबर डिविजिबल जाएगा कि नहीं. यहाँ पे हमने एक रूल्स पढ़ा था इन डिविजिबिलिटी ऑफ 11 कि जो सम होता है सम ऑफ द डिजिट इन इवन प्लेस एंड सम ऑफ द डिजिट इन ऑड प्लेस. तो इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस का नंबर नाम मतलब पहले समझते हैं. इवन प्लेस का मतलब होता है कि जो नंबर 2 में है, 4 में है या 6 में है, मतलब सेकेंड प्लेस में है, देन फोर्थ प्लेस में है, सिक्स्थ प्लेस में है, सो वो सारे इवन प्लेस हो जाता है. ऑड प्लेस का मतलब होता है जो फर्स्ट प्लेस में है, थर्ड प्लेस में है, फिफ्थ प्लेस में है, सेवेंथ प्लेस में है, क्योंकि ये सारा ऑड नंबर्स है. तो ऑड नंबर्स जो भी है, ऑड नंबर प्लेस में जो भी नंबर्स है उसको, ऐसा नहीं है कि ये नंबर देख के इवन नंबर और ऑड नंबर ऐड करना है, प्लेस देखना है. फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, ये प्लेस देखना है, ना कि नंबर देखना है. तो यहाँ पे अगर हम सेकेंड और फोर्थ प्लेस का बात करें तो ये दो नंबर है 4 और 5, ये सेकेंड और फोर्थ प्लेस में है, और 2 और थर्ड जो है ये फर्स्ट एंड थर्ड प्लेस में है. ठीक है, तो अभी हम लोग का जो इवन प्लेस में नंबर है वो 4 एंड 5 है. ठीक है, तो 4 एंड 5 का सम कितना हो जाता है 9, राइट. माइनस करना है जो ऑड प्लेस का नंबर का सम है. सो 3 + 2 is 5. So 5. So 9 minus 5 is 4. Okay? 9 minus 5 is 4. तो ये जो डिफरेंस हम लोग का आया सम ऑफ द ऑड नंबर्स, अच्छा सम ऑफ द ऑड नंबर्स एंड सम ऑफ द इवन नंबर्स का, ये अगर 11 से डिविजिबल हो जाता है या 0 आता है, मतलब ये जो नंबर है अगर 11 का मल्टीपल्स होता है या 0 होता है, देन द रिक्वायर्ड नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11. सो सिंपल प्रोसेस ये है. अब ध्यान देने का कोशिश कीजिए और अच्छे से कि हम लोग को एक एक नंबर छोड़ के जो नंबर है उसको ऐड करना है. इवन प्लेस का नंबर और ऑड प्लेस का नंबर्स को ऐड करना है, और ये दोनों को ऐड करके उसका डिफरेंस निकालना है. उसका डिफरेंस अगर 0 या 11 का मल्टीपल आ जाता है, देन that number will be divisible by 11, otherwise it will not be divisible by. तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं जो इवन प्लेसेस में नंबर है वो है 0 and 7, और ऑड प्लेसेस में जो नंबर है वो है 5 और 2. तो आप यहाँ पे देख सकते हो इवन प्लेसेस का सम हो जाएगा 7, 0 + 7 is 7, माइनस ऑड प्लेस का सम हो जाएगा 5 + 2 is also 7. So 7 - 7 is 0. तो यहाँ पे हमने कुछ डिस्कस किया था कि 0 या 11 अगर होता है तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11. तो ये नंबर जो होगा, दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11. क्यों? क्योंकि हमारा जो इवन प्लेसेस का जो सम है और ऑड प्लेसेस का सम है और इवन प्लेसेस का सम जो है उसका डिफरेंस हमारा 0 आया. अगर 0 या 11 का मल्टीपल्स में डिफरेंस आता है तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11. ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है, समझने की कोशिश कीजिए. यहाँ पे भी सेम हम लोग करेंगे. ठीक है, तो हमारा इवन प्लेसेस का जो सम है वो हो जाएगा 8 + 5. ओके, सो 8 + 5 is 13. तो 13 माइनस यहाँ पे ऑड प्लेसेस में जो नंबर है 2 + 0 is 2. सो 13 - 2 is how much 11. तो यहाँ पे 11 आया, 11 is the multiple of 11. So definitely this number will also be divisible by 11. तो ये भी नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि इसका इवन प्लेसेस का नंबर और ऑड प्लेसेस का, इवन प्लेसेस का सम और ऑड प्लेस का सम का जो डिफरेंस है दैट वी गॉट 11. 11 और 0 और 11 का मल्टीपल्स अगर आता है तो 11 से डिविजिबल हो जाता है. ठीक है, तो दिस इज द थिंग्स. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस वन, इसका अगर बात करें इसमें भी ऐड करते हैं हम लोग 3 + 5 8. ओके, एंड हियर 4 + 2 is 6. So -6. Here it is 2. So this number will not be divisible. यहाँ पे 7 + 1 is 8. ओके, एंड यहाँ पे 7 + 6 + 2 is also 8. So 8 - 8 is 0. So this number will be divisible. ये नंबर डिविजिबल जाएगा. ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी देखेंगे 9 + 2 is 11. ओके, 11 - 7 + 3 is also 11. Sorry, 7 + 3 is 10. So -10 is equal to 1 डिफरेंस आ रहा है. So this number will not be divisible. तो सिंपली इवन प्लेस और ऑड प्लेस का सम निकालना है, उसका डिफरेंस निकालना है दोनों का. इवन प्लेस का सम माइनस ऑड प्लेस का सम. ठीक है, और उसके डिफरेंस अगर 0 आ जाता है देन इट विल बी डिविजिबल बाय 11, और अगर 11 का मल्टीपल्स आता है देन ऑल्सो. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे.
थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।